yesterday we started with the planning in India. Rather, we started with the NCERT class 11, and here we discuss about the first. We covered the first chapter, and one request to all the students: whenever you come in the class, put your original. I mean, put your name instead of putting some ID or some. So that is my request, because that will help us to know that the students who are attending the class, they are the our students only. Okay, that is a common many times students who are not part of our institute, they also join the classes. Okay, so let's quickly revise what we covered in the previous class. So in the previous class we discussed about India's economy on the eve of independence, and we were doing chapter number 2. So today the objective is to cover the chapter 3 and chapter 4. As I mentioned, I have added some extra areas of planning in India. So planning and globalization का पूरा मैंने extra content भी add किया हुआ. That means we are going way beyond NCERT. Now let's quickly understand what we read in the previous lecture. So we discussed the importance of India as a colony for Britishers, and we discussed how before than that India was an independent economy. India was doing well in the agriculture as well as industry. Britishers plundered our economic system. They brought in new policies. They ensured the resources were taken to their own country, and there were Indian thinkers who wrote extensively on how India was exploited by the foreign countries, especially the British colonies. We discussed about how the agriculture was almost subsistence level agriculture, where around more than 85% of people were dependent. But Indian agriculture growth was very stunted and productivity was very low. And the reason why productivity was low, because we were following a very archaic and old agriculture structure. हमारा जो agriculture का system था, that was very old, and it was it was not on the modern lines, because around the world we could see that industrialization had happened. So industrialization हो चुका है, and still in India we are facing this kind of problem, because Britishers never made an intention to you can say bring the reforms at their level. One prime reason was the agriculture policy, and agriculture policy is mainly the land revenue policy that we can understand here. And here now here you can see how land tenure system were used by Britishers to exploit India. Then industrial sector, if you try to see, industrialization India में हुआ नहीं था, because colonial government focused on ensuring that India is seen as a country जहाँ से raw material जाएगा and Britishers उसको exploit करेंगे. And industrialization though started in the beginning, but not to the level. The industrialization was very at the beginning level. कुछ industries grow की, but that was mainly because of individual initiatives by the Indian players, unlike the support of Britishers. So but a few areas got attention of Britishers, especially railways हो गया, power generation, communication, and these were fundamentally because Britishers wanted to develop these areas for their own for their own development. If they had to take a raw material from one part of the country to another part of the country, that is important. Communication was key for them. Foreign trade, as we discussed, it was an area where Britishers were able to exploit India, where India was source of raw material, and the income from the foreign sources were majorly used to fund the British needs. Okay, so monopoly of India's export and import. We discussed how Suez Canal opening changed the entire dynamics. Now coming to the demographic condition. तो कल मैंने आपको डिस्कस किया था and had discussed that how India as a country, जो demographic हमारा जो nature था, it is like that. ये demographic population का जो होता है वो इस तरह से कुछ होता है. So to be in fact और अगर बेटर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है. So this is time and this is population.
सो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की ऐसे ग्रो करती है दैट शुरू में पॉपुलेशन कम होती है एंड देन इट राइजेस, इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली एंड देन इट स्टेबलाइजेस. सो दिस इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ठीक है, डेमोग्राफिक मतलब किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन पहले द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई और फिर फाइनली लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट पे स्टेबलाइज हो जाती है. तो इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज. ये फर्स्ट स्टेज है आपका जब आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट वो बोथ हाई. ठीक है, जब दोनों हाई होते हैं तो पॉपुलेशन तो ज्यादा होती नहीं है बिकॉज द बर्थ रेट इज हाई, डेथ रेट इज हाई, सो बर्थ रेट इज आल्सो हाई. इन द सेकंड स्टेज, ये जो सेकंड स्टेज है यहाँ पे आप देख रहे हो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है. सो इंडिया विटनेस्ड आफ्टर 921, हम 921 के बाद हम लोग सेकंड स्टेज में गए और इसके बाद आफ्टर 1951 ये और एक्सपोनेंशियली ग्रो किया. So the growth was very exponential in the later part of independence. And India का जो demographic indicators थे, socio-demographic indicators, social development indicators, they were very poor. India was a country with limited resources. Literacy level कम था. Women literacy was even at very low level, 7%. The mortality rate was very high overall. IMR was almost 218 per thousand, जो आज 33 के आसपास पहुंच गया है. एनसीईआरटी में 40 दिया हुआ है. ठीक है, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड इंडिपेंडेंस वाज 44 years. टुडे इट इज 69-70 years. पॉवर्टी वाज वन ऑफ द चैलेंजेस दैट इंडिया ऑलवेज फेस्ड. और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाउ इंडिया वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज हैड वेरी लिमिटेड कंट्रीब्यूशन. सो मैन्युफैक्चरिंग हार्डली 10% and services was 15-20%. So that was the nature of India's economy. उस वक्त इस तरह के कंसर्न्स हमें देखने को मिलते थे. In some areas like in Madras Presidency, Bombay, Bengal, we saw that agriculture declined and manufacturing और services का growth हुआ था. But that was, India is a big country, तो किसी part में अगर ऐसा भी हुआ तो that is not a very not a very surprising thing. But overall India was an agricultural economy. इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया, सो दैट वाज टू सर्व देयर ओन नीड, स्पेशली रेलवेज, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ. एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस रेलवेज. इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड रादर जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ. नाउ रेलवे चेंज द डायनामिक्स बिकॉज इंडिया का जो पॉपुलेशन है, डायनामिक्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स वर ब्रोकन. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो स्टार्टेड बिकॉज Britishers wanted to use the India's agriculture for their own industry in the Manchester or maybe England. Okay, so volume of exports, बढ़ गया काफी तेजी से. But the benefit of export was taken by Britishers only. ये हमने देखा. Telegraph was to maintain law and order, communication के लिए important था. So this we discussed in the previous lecture. India got independence and India had two options, that whether we go with a socialist economy model. Socialist economy मतलब कि where government will control anything or everything, or you go with another model called capitalist model. So we adopted industrial policy resolution model, जो it was based on the principles of directive principle of state policy. यानी it was based on the principle of socialism, where public sector with PSU, public sector led होगा, and these were at the commanding height. प्राइवेट का रोल कम रहेगा, which means government will control majority of the areas, and that is how planning commission was set up and 5-year plan era started. प्लानिंग कमीशन में हमने चाइनीज या फिर रशियन मॉडल फॉलो नहीं किया. वी फॉलोड अ मिडिल मॉडल. सो एट वन एंड वी हैव अ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल, एंड देन यू हैव अ कैपिटलिस्ट मॉडल. हमने कुछ बीच का मॉडल फॉलो किया, बट इट वाज टिल्टेड टुवर्ड्स सोशलिज्म और कम्युनिज्म. तो हमारा जो मॉडल था उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल बोलते हैं. So we all now here we discuss about difference between market economy and difference between command economy. Command economy में government controls almost 100%. Price control, quality, demand, what should be produced, how much should be produced. Private property is not allowed. और उसका just extreme end है free market economy, जिसको हम market economy बोलते हैं. And here business is allowed to grow. And everything is in the hands of the private players. ये मैंने सब डिस्कस किया था. laissez-faire system क्या होता है? laissez-faire is a free market economy. Okay. Then we discussed that why दोनों के challenges क्या थे. Command economies के अपने problems होते हैं. Command economies are supposed to be very inefficient. Command economy मतलब communist economy, because यहाँ कोई competition नहीं होता. There is no innovation and government is doing everything. So innovation and efficiency के लिए अच्छा नहीं है.
लेट्स से आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, सो व्हाट इज द इंसेंटिव ऑफ डूइंग गवर्नमेंट जॉब? इट हैज सिक्योरिटी, इट हैज बेनिफिट, इट, और अब तो पे भी अच्छी है, इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस ड्रिवन इंसेंटिव्स का सिस्टम भी स्टार्ट हो गया है। इन अ कमांड इकोनॉमी, सिंस इट बिलीव्स इन की सोसाइटी में इक्वालिटी होना चाहिए, तो रिच एंड पुअर के बीच डिवाइड नहीं होना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बिकॉज हियर द हाईली स्किल्ड पीपल एंड एवरेज स्किल्ड पीपल को बहुत डिफरेंस वेज में नहीं रहेगा, मार्जिनल डिफरेंस उनको देखने को मिलता था। तो पीपल हु वांट टू डू समथिंग had very limited incentive. आप एक बिजनेस खड़ा करोगे, you can earn huge profit. That was not possible in the command economies. So that, good, but there were good things also. For example, unemployment कम होता है, government ensures job security, everybody has health care, education, equal income. But ये सारी कमांड कम्युनिस्ट सिस्टम बाद में डिक्टेटोरियल रेजिम पे चले गए, and यहाँ पर कल्ट leadership हुआ. So we had Stalin in Russia, पहले we had Mao in China, and then वो King जो आपका चलता है नॉर्थ कोरिया में. So these similarly we had Fidel Castro in Cuba. Okay, so ये क्या थे? They suppressed everything. आप कम्युनिस्ट सिस्टम में अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, but if there is something bad about communist system, there is no freedom. You cannot question the government. And they believed in the concept of duty. अभी गवर्नमेंट आपको सबको दे रही है तो आपकी ड्यूटी है. क्या ड्यूटी है? ड्यूटी है टू सर्व द कंट्री. ड्यूटी है दैट यू डोंट क्वेश्चन एनीथिंग. ड्यूटी है कि आप सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, कुछ को भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. देयर इज प्रैक्टिकली नो इंडिविजुअल राइट्स. और सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बैड है, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर टू वर्क हार्डर. इनोवेशन इज प्रैक्टिकली नॉट देयर. कंपटीशन इज नॉट देयर, so quality is impacted. Some people became dictators, वो leaders बन, they become corrupt also. And individual freedom few नहीं, almost zero होती है. For example, China is being questioned today. आज चाइना को क्वेश्चन किया जा रहा है their response on the COVID. चाइना ने सोचा कि हम इसको हाइड कर लेंगे, इस कोविड प्रॉब्लम को, and they informed world late. उन्होंने थोड़ा लेट इन्फॉर्म किया. प्रॉब्लम हुआ किसी भी जगह पैंडेमिक हो सकता है. Also because of the fooding culture. You'll be surprised to know that China में 1958 से 61 के बीच में they had a massive drought आया था. तो इस टाइम पे क्या था कि गवर्नमेंट अलाउड टू people to eat even anything. आपको कुछ भी मिल जाए आप खा लो, exotic animals खाना है खा लो. And that policy led to people maybe eating you're eating bats, you're eating pangolins, you're eating मतलब पता नहीं आप क्या क्या खा रहे हो. there are exotic species को आप खा रहे हो आप. And that is how you can see today we are witnessing the consequence. और सिर्फ वहीं की बात नहीं कर रहा हूँ. Same is true with Thailand, same is true with Cambodia, same is true with Vietnam. If you see their fooding culture, you'll be surprised. So disease का आना, it is something which is very natural. मार्केट सिस्टम जो होता है, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, इट हैज इट्स ओन वर्च्यू. द बिगेस्ट वर्च्यू इज दैट देयर इज गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जीरो होता है. प्रॉफिट मेकिंग इज द वर्च्यू. कंपटीशन इज देयर एंड वी गेट लॉट ऑफ वेराइटी इन टर्म्स ऑफ गुड्स. कंपटीशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट इंश्योर्स दैट रेगुलेशन हो जाता है. यहाँ पे हमने, आपको याद होगा, इफ आई डिस्कस कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड. तो एडम स्मिथ का मानना था कि एक इनविजिबल हैंड इस सिस्टम को चलाता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को. फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, गुड्स प्रोवाइड कर रही है, सो द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड. जब आपको गुड्स एंड सर्विस प्राइवेट फर्म प्रोवाइड कर रही है, सो दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. अगर वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा. दे ऑल्सो आर कॉम्पिटिटिव, हेंस प्राइसेस भी काफी, आप कह लो कि कॉम्पिटिटिव होंगे या कम होंगे. सो पीपल लार्जली गेट बेनिफिट. So ultimately public good is also happening because you're getting good quality at a cheaper price. अब ये एक सेल्फ रेगुलेट सिस्टम है. अगर गुड्स या सर्विस का क्वालिटी या प्राइस अगर इम्पैक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो सेल्स होगा वो इम्पैक्ट हो जाएगा. So sales will not happen, which means profit will not happen. And that is where it was believed कि यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म इसमें देखने को मिलता है. So self regulation is natural. तो यही इनविजिबल हैंड है. पीपल आर वर्किंग फॉर देयर ओन प्रॉफिट, बट व्हेन दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन प्रॉफिट, समवेयर अननोइंगली
और अनइंटेंशनली दे आर आल्सो वर्किंग फॉर सोसाइटी, बिकॉज जब वो प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं तो क्वालिटी भी फोकस कर रहे हैं, दे आर आल्सो इंश्योरिंग दैट द प्राइसेस आर आल्सो लो लेवल पे है। तो ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग वर्च्यू जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो है देखने को मिलता है, एंड दैट इज ट्रू आल्सो टू एन एक्सटेंट, दैट यस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अपने स्ट्रेंथ्स भी देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द free market economy model. But remember, free market economy model does not mean that it does not have challenges. Free market economy model के भी challenges है, especially market imperfections, especially rules are not being followed. Regulation कम होता है तो misuse हो सकता है regulation का, okay, regulation ना होने का, okay. But the good thing is there is competition है, innovation is the spirit, wealth generation is the key. और फिर गवर्नमेंट को फायदा क्या मिलता है? तो एनी कंट्री या गवर्नमेंट जो होती है उनको उनका जो अर्निंग्स होता है वो काफी ज्यादा होता है ना, थ्रू टैक्सेस। तो टैक्स के थ्रू रेवेन्यूज आते हैं, एंड दिस टैक्सेस कैन बी देयर इन द डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। इफ आई टॉक अबाउट स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक कंट्रीज है आपकी, स्कैंडिनेवियन नेशंस है। सो इफ यू ट्राई टू सी दीज नेशंस, they are more socialist than so-called socialist countries. Same is true with Germany, to an extent France, UK. यहाँ पर आप देखोगे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, they are almost at a very आपको फ्री मिलता है। यूएसए इज अ डिफरेंट मॉडल, बट यूएसए में भी वेलफेयर पे फोकस होता है। सो द पॉइंट आई वांट टू मार्क हियर इज दैट ये जो इकोनॉमीज है दे फोकस ऑन वेलफेयर आल्सो, बट वेयर विल द वेलफेयर कम फ्रॉम? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सो इट इज वेरी नेचुरल that government will also get good revenue. For example, in USA, 40% people pay taxes. उनकी 40%, हमारे इंडिया में 10% भी नहीं है। इन इंडिया अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो सब लोग पे कर रहे हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट इनकम टैक्स, नॉट इवन 10%। इनफैक्ट नंबर्स अगर देखा जाए तो 5% के अराउंड है, अराउंड 6.8 परसेंट, 6.8 करोड़ ऐसे करके नंबर है जो इनकम टैक्स पे करते हैं इंडिया में। एंड सो गवर्नमेंट की कैपेसिटी कम है। आज देखो जो प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों नहीं रिलीफ पैकेज पे आ रही है, क्यों नहीं? बिकॉज गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज अगर है तो गवर्नमेंट बहुत दे आर ऑप्टिमाइजिंग, वो कहेंगे एकदम वही खर्च करेंगे जहां हमको लगता है खर्च करना है। उन्होंने मार्च तक का एक पैकेज दिया था, उन्होंने सॉरी जून तक का पैकेज दिया है। मे बी अ न्यू पैकेज विल कम फ्रॉम इंडस्ट्री, और फिर मे बी वी डोंट नो, बट दैट इज हाउ इट इज। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट नोज दैट अनदर वे इज टू बूस्ट द इंडियाज इकोनॉमी। आप इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करिए। आई डोंट नो, अभी न्यूज में आ रहा है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज दैट इंडिया इज लुकिंग ways to woo the foreign investment. Just now I read in an article जहां ये लिखा हुआ था that finance ministry is planning कि फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उनको 10 ईयर का टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। कैन यू बिलीव दैट? आप इंडिया में आओ, आपको 10 साल एक भी रुपए टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है, बट योर इन्वेस्टमेंट शुड बी अराउंड $500 मिलियन, इतना मिनिमम होना चाहिए, विच इज लेट्स से ऑलमोस्ट 3500 करोड़ आपको होना चाहिए। तो आप ये देखोगे कि इतना इन्वेस्ट कर रही है। इनफैक्ट दे आर सेइंग दैट $100 मिलियन पे हम आपको 4 ईयर का टैक्स हॉलिडे देंगे, और 6 years आप सिर्फ 10% टैक्स पे करो। वी डोंट नो, दीज आर सम, बट सो दैट इज हाउ यू हैव टू इंश्योर दैट। सो अंकित का सवाल है सर, अंकित ये जो परसेंटेज है 3%, जो 5% है ना, इतने लोग टैक्स फाइल करते हैं। ये डिमोनेटाइजेशन बहुत बहुत तेजी से बढ़ा है। सो दीज आर द पीपल हु फाइल टैक्सेस, टैक्स रिटर्न, सॉरी आईटीआर रिटर्न ये लोग फाइल करते हैं। तो इसमें जो टैक्स पेइंग है वो तो और भी कम है, वो हार्डली 1% है। मतलब तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें हार्डली 1% टैक्स पे करती है। आईटीआर 2.5 लाख के ऊपर जो भी जिसकी भी इनकम है उनको टैक्स फाइल, उनको रिटर्न फाइल करना होता है, बट आपका जो टैक्स लगता है वो 5 लाख से ऊपर लगता है। तो अभी तो बहुत सारे लोग जो है वो इस कैटेगरी में 2.5 टू 5 लाख के बीच में है। ओके, सो डिमोनेटाइजेशन से एकदम से बढ़ा है नंबर पीपल हु आर फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग। फिर हमने कल डिस्कस किया था इकोनॉमिक प्लानिंग में इंडिया में 1947 के बाद ऑप्शन क्या था, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट एंड ऑफ कोर्स कैपिटलिस्ट। तो वी फॉलोड अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, ये 4 पिलर्स पे हमारे ग्रोथ मॉडल डेवलप फोकस था। सो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इज अबाउट जीडीपी ग्रोथ, और हमको इकोनॉमिक ग्रोथ से डेवलपमेंट पे इंश्योर करना है। मॉडर्नाइजेशन वाज मेन अबाउट इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ओके, आर&डी, इनोवेशंस, क्रिएटिंग साइंटिस्ट, इंजीनियर्स। ओके, सो ये सारा हमारा जो है ऑब्जेक्टिव।
just hold on guys. Okay, so that was modernization. Self reliance is developing our own capacity. सेल्फ रिलायंस को हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं. द फोकस वाज टू रिप्लेस इंपोर्ट. तो हम लोग को डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है. सेकंड इज वी हैव टू मॉडर्नाइज आवर इकोनॉमी, वी हैव टू इंडस्ट्रियलाइज आवर इकोनॉमी, एंड वी हैव टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स एंड विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन. जैसे हमारा आज मेक इन इंडिया है, इससे पहले नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी, एनपी 2011 थी, मेक इन इंडिया जो 2014 में आई. सो ये सब क्या है? दीज आर समवेयर फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये पॉलिसी उस वक्त भी थी, बट इट वाज एंटायरली अबाउट रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स और रिप्लेसिंग इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो अपनी कंट्री कैपेसिटी जो है इंप्रूव कर रहे हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था. एंड प्लानिंग गोल के आर्किटेक्ट थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस बोलते हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस. एंड ही along with Jawaharlal Nehru were the architect of the India's plan. सोशल जस्टिस एक और गोल था, जहां पे आप you're working for the masses, especially you are ensuring कि कंट्री के जो इंक्लूसिव ग्रोथ आप इंश्योर करिए. ग्रोथ जो है वो इट शुड रीच द मासेस. देयर शुड बी ट्रिकल डाउन इफेक्ट. ठीक है ना, ट्रिकल डाउन होना चाहिए, ग्रोथ ट्रिकल होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ट्रिकल डाउन इफेक्ट. सो यू कैन से अगर कोई कंट्री पॉलिसी बनाती है, सो गांधी तालिस्मैन क्या कहता है? गांधी तालिस्मैन, अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए, what should be the way forward, so you should always think about a policy or efforts or initiative which should help the poor person. ठीक है. सो हमारा इंक्लूसिव जो ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है, दैट पुअर पीपल शुड गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. पुअर पीपल शुड बी शुड रीच, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उन तक कैसे पहुंचे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. देन ओनली द आइडियल्स ऑफ सोशल जस्टिस कैन बी रियलाइज्ड. अभी आप देख रहे होगे जो ये क्राइसिस चल रहा है, इट इज अ ह्यूज, ये सिर्फ पैंडेमिक नहीं है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है. Lakhs of laborers are moving, they are going back to their home state, and there are lot of problems they are facing. और definitely problem तो है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, बट इट इज वे टू बियॉन्ड. उनको पता है कि लॉकडाउन करना उनकी मजबूरी है, दे हैव टू फाइंड अ वे आउट. ओके, सो दिस इज व्हाट, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे भी है कि भी हम इनको इंश्योर करें, द मासेस शुड बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट. जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जो कुछ टाइमलाइन था, कुछ इस तरह से था. नाउ यू कैन सी 1934 में विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, ही इज आल्सो कॉल्ड एज मे बी भारत रत्न रेसिपिएंट थे. उनको ही रोट अ बुक कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. सो उन्होंने भी यही कहा कि गवर्नमेंट को लीड लेना चाहिए. एंड 1938 कांग्रेस का प्लान आया, उसमें भी सेम था दैट गवर्नमेंट शुड, दे वर ऑल फोकस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल. उनको लगता था कि सोशलिस्ट मॉडल ही वर्क करेगा. And why socialist model? Because we had a USSR model also जो अच्छे से काम कर रहा था. Even industrialists also supported. उन्होंने भी कहा कि गवर्नमेंट को लीड लेना चाहिए, but eventually they said that once government will take the lead, धीरे धीरे आप प्राइवेट को भी अलाउ करिए. So government should take the lead, but private should be given a way forward. फिर एक कुछ लोग गांधीयन प्लान हो गया, पीपल्स प्लान हो गया, सर्वोदय प्लान हो गया. ये और भी बहुत सारे प्लान थे जो डिफरेंट थिंकर्स केम टू डेवलप द कंट्री. प्लानिंग कमीशन बनी ऑन द लाइंस ऑफ सोवियत रशिया, यूएसएसआर, एंड वी डेवलप्ड आवर ओन प्लानिंग गोल्स. और 1950 में एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना जो कि प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगा. 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को शट डाउन कर दिया, एंड ही रिप्लेस्ड इट विद न्यू इंस्टीट्यूशन कॉल्ड नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ओके, सो नीति आयोग, तो नीति आयोग एक तरह से आज भी वही काम कर रही है जो प्लानिंग का अर्स्टवाइल प्लानिंग वाला जो काम जो प्लानिंग कमीशन कर रहा था, वो नीति आयोग कर रही है. बट नीति आयोग इज मोर ऑफ अ थिंक टैंक. उनका गवर्नमेंट में डायरेक्टली रोल नहीं होता है, दे आर मोर ऑफ अ थिंक टैंक. फिर हमने डिस्कस किया प्लान, ये मैं इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको सीधा यहाँ टेबल पे जाता हूँ एक. सो हियर इफ यू सी, तो ये हमारा पूरी इकोनॉमिक मॉडल, पूरा इकोनॉमिक, अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, सो वी कैन से दैट इंडियाज इकोनॉमी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर फेजेस, दैट इज from 1951 to 1991, और यहां होंगे फर्स्ट टू सेवेंथ प्लान. ठीक है, और फिर 1991 से लेके 2020 तक, और यहां पे वी हैव 8th to 12th प्लान.
So broadly you can understand India's economy from the first phase. ये जो पहला phase है, this was a phase of pre-reform. और pre-reform का जो phase था, this was a phase where government led development था. Okay, so government led development and the model was PSU led. Public sector enterprises जो है वो develop करेंगी. The model though it was a mixed economy, private भी allowed होगा, but the private will have a limited role. तो limited role private का होगा and का role काफी regulated होगा. This was a pre-reform model. It was also a model of closed economy. अपनी economy को आप close कर रहे हो and you are focusing on ensuring that कि आपकी economy के अंदर import substitution हो, बाहर से imports ना हो, आप domestically produce कर रहे हो, and government should take the lead role, especially through the public sector enterprises. और ये public sector enterprises, majority almost all the areas में रहेंगे, and they will eventually become the growth engine of the country. यही country को develop कराएंगे, यही country को modernize करेंगे, यही country को self reliant बनाएंगे, and they will also ensure social justice because the benefit accrued by the PSU growth will ensure inclusive growth. तो ये जो है major vision था, viewpoint था, and the architect were PC Mahalanobis and Jawaharlal Nehru. And it looked very well because they talked about a picture जहां पर government India को industrialize करेगी, and once India industrialize होगा तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट पहुंचेगा बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन यूएसएसआर मॉडल, और यूएसएसआर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था. एंड यूएसएसआर इफ यू रिमेंबर आई डिस्कस यस्टरडे, द 1921 में उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए थे, एंड इन 19 मे बी 20s एंड 30s रशिया में जो डेवलपमेंट था वो अनप्रेसिडेंटेड था, स्पेशली इन द साइंस एंड टेक, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. आज भी आप मॉस्को की जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के या उसके बाद के पीरियड के बने हुए. सो दे हैड अ मैसिव जो उनका मॉडल था, इट वर्कड वेरी वेल, बट द प्रॉब्लम वाज दैट दे डिड नॉट हैड द एंटरप्राइजिंग सेंस. स्पिरिट नहीं था. एक प्राइवेट प्लेयर जब बिजनेस करता है तो उसका स्पिरिट अलग होता है. एक प्राइवेट प्लेयर अपने प्रॉफिट पे वर्क करता है. एक प्राइवेट प्लेयर दे ब्रिंग इनोवेशन, एंड फॉर पीपल लाइक अस हमारे पास ऑप्शंस होंगे. So, इस पूरे फेज में हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट वाज हार्डली 4%. ठीक है, एंड इट वाज वेरी लेस. तो हम ये भी कहते हैं जो प्री रिफॉर्म फेज था, इट वाज अ फेज ऑफ लो इकोनॉमिक ग्रोथ. और हमारे जो टारगेट थे दे वर लेस देन, मतलब 20, हमारे टारगेट दे वर लेस देन 20% ऑफ द एक्चुअल टारगेट. जो हमारे टारगेट थे वो हमेशा हमने अचीव नहीं किए हैं. तो अगर आप देखोगे तो ये जो पहला मॉडल था, द फर्स्ट प्लान वाज इन 1951 to 56. दिस वाज अ मॉडल, it was based on the model of Harrod-Domar. इसको हम लोग Harrod-Domar मॉडल बोलते हैं. ठीक है, this is a model based on saving and investment. बट फर्स्ट प्लान में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे. इंडिया में क्या हुआ था, इन्फ्लक्स और रेफ्यूजी हुआ था, फूड शॉर्टेजेस हो रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था इंडिया में, महंगाई ज्यादा थी. इंडिया जस्ट गॉट इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर, इस पर फोकस था. बट हमने अपने टारगेट को अचीव किया था, एंड टारगेट भी बहुत छोटा था, 2.1% का ग्रोथ टारगेट था. एंड वी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 5 ईयर, बिकॉज प्लानिंग वाज अबाउट 5 ईयर टारगेट ग्रोथ. द सेकेंड प्लान जो था वो 4.5% था, वी वर एबल टू अचीव. बट जो हमारा जो मॉडल था which I discuss, ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये जो मॉडल था, this was a model based on सोवियत रशिया. और इसको हम ये भी बोलते हैं, this model was based on socialist model where government will take a lead. एक बात याद रखिएगा, सोशलिस्ट मॉडल का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट प्राइवेट को अलाउ नहीं करेगी. प्राइवेट विल बी अलाउड बट टू अ लिमिटेड डिग्री. प्राइवेट का जो द काइंड ऑफ लेवल ऑफ एंट्री ऑफ प्राइवेट और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट विल टू अ लिमिटेड लेवल. But socialist model में government will take the lead role, and focus was rapid industrialization, heavy industries. Industrial policy 1956, you can say was the landmark industrial policy which made things like that. जो थर्ड प्लान था here, अब यहाँ गाड़ी हमारी डिरेल होना स्टार्ट हुई. देखिए ना, सेकंड प्लान से 3 प्लान में 15 साल हमारे डिरेल हो गए. But the real problem started in third plan, where we faced issues like self reliant, self generating economy हमारा ऑब्जेक्टिव था.
बट यहाँ पे वॉर हुए, ड्रॉट सिचुएशंस हुए, वॉर विद चाइना, वॉर विद पाकिस्तान, द फोकस ऑफ द इकोनॉमी मूव टुवर्ड्स डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। हमने बहुत सारा डिफेंस पे इन्वेस्ट किया, एंड दैट इम्पैक्टेड आवर इकोनॉमी, दैट इम्पैक्टेड द द एंटायर प्लान जो था वो डिरेल होना स्टार्ट हो गया। फोर्थ प्लान अगर आप देखते होगे तो 5.7% ग्रोथ टारगेट था, बट वी वर एबल टू अचीव 3.21। तो ये जो पूरा एक डेकेड था 61 से लेके, और यू कैन से ऑलमोस्ट अ डेकेड नहीं, मैं इसको 15 ईयर बोलूंगा, ये पूरा हमारा एक लॉस्ट पीरियड था। 60 से लेके यू कैन से 61 62 में जो वॉर, यू कैन से टू ऑलमोस्ट 75, इनफैक्ट इमरजेंसी तक आप इसको कह सकते हो। तो ये 17-18 ईयर्स का जो पीरियड था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिड वी अचीव समथिंग एल्स और दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग डेकेड पीरियड था, because India might have got political stability under leadership of Indira Gandhi. India might have, have been able to, ward off the challenges of, 3 wars which had to face. India ने food sufficiency भी attain किया इस period में, but from the economic point of view, जो development था that suffered, and the development का जो the suffering था that was to एक अलग ही level पर, disproportionate level पे हमारे losses हुए थे, because हम एक economy की बात कर रहे हैं जो अभी स्टार्ट हुई है, थिंग्स हैव जस्ट बिगन ऑलमोस्ट अ डेकेड अगे, एंड वी हैव टू ग्रो वेरी वेल इन कंपैरिजन अदर कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया और सिंगापुर और फिलीपींस और मलेशिया, दे डिड वेरी वेल, और इन्होंने इंडस्ट्रियलाइज किया। इनका जो आउटलुक था, हमारा जो इकोनॉमी थी वो इनवर्ड लुकिंग थी। सो इनवर्ड लुकिंग का मतलब है हमने कहा हम बाहर पे कुछ फोकस नहीं करेंगे, विल डेवलप आवर ओन इकोनॉमी, we will not do not focus on foreign investment, we will not allow foreign companies to come and invest in India। हम अपनी डोमेस्टिक, अच्छा इंडिया में तो फॉरेन कंपनी छोड़ दीजिए, इंडियन फर्म को भी अलाउ नहीं था, इंडियन फर्म को भी रिस्ट्रिक्टेड तरीके से जो है अलाउ कर रहे थे आप। ओके, सो दैट इज द फोकस। फिफ्थ प्लान में हमारा जो है थोड़ी सी गाड़ी इंप्रूव हुई। दिस वाज अ पीरियड वेयर गवर्नमेंट, अच्छा इस टाइम एक और था, अगर आप फोर्थ प्लान में देखोगे तो वॉर 1971 का, रेफ्यूजी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस, ड्रॉट, सो दीज वर द प्रॉब्लम्स। बट फिफ्थ प्लान में गाड़ी थोड़ी रिवाइव हुई, 4.4%, टारगेट था 4.8 हुआ। इसके मल्टीपल रीजन थे, इंडिया की ऑयल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गया, इंडिया वाज एबल टू डू रिलेटिवली बेटर इन द एरियाज ऑफ you can say we were able to do relatively better in the areas of फॉरेन से जो एक रेमिटेंस आता है, जो हमारे इंडियंस जो बाहर एक्सपेट्रिएट्स जो रह रहे हैं, वो इम्प्रूव हुआ था। सो इंडिया वाज डूइंग वेल। एंड सिक्स्थ प्लान में हमने देखा कि हमारे सिक्स्थ और सेवेंथ प्लान में, तो ये जो अगला 3 डेकेड था, बट हमारा देखो ना ग्रोथ हमने बहुत, वी हैड अ वेरी सबड्यूड ग्रोथ टारगेट एज वेल। हमारा जो ग्रोथ टारगेट था वो काफी सबड्यूड था, बहुत कम था। एंड हियर वाज आल्सो फोकस, अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा फेज था लेट 60 और 70s का, इट वाज अ फेज ऑफ गवर्नमेंट मूविंग टुवर्ड्स सोशलिज्म। इंदिरा गांधी के अंडर में द फोकस वाज एंटायरली हाउ डू वी इंश्योर कि गवर्नमेंट कंट्रोल और बढ़े। एंड आई पर्सनली एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और मैं नहीं, आज जो क्रिटिक्स होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड बोलते हैं कि दिस वाज द मिसप्लेस्ड सोशलिज्म। इस वक्त प्राइवेट को अलाउ करना चाहिए था। इन द बिगिनिंग द स्ट्रेटजी वाज करेक्ट, मे बी फर्स्ट 2 प्लान और 3 प्लान, थर्ड प्लान ऑनवर्ड जो है इंडिया को प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना देना चाहिए था, एंड देन थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बिकॉज द एनिमल स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, जो बिजनेस करने वालों की जो स्पिरिट है वो आती, इन्वेस्टमेंट्स आते फॉरेन से, इंडिया के अंदर एक कंपटीशन डेवलप होता। सो आई थिंक वी मिस द बस अराउंड दैट। जो इन द बिगिनिंग में कंट्रीज है, जापान हो गया, मे बी साउथ कोरिया हो गया, तो या ये सारे जो कंट्रीज हैं in the beginning में, they were the benefit, they saw the benefit, later China भी आया, they saw the benefit of globalization या फिर external trade, इनको शुरू में जो है इसका benefit नजर आया। So we somewhere missed the bus in that period, but fifth plan onwards थोड़ा सा improvement हुआ। but यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पूरा डेवलपमेंट था स्पेशली इन द सिक्स्थ एंड सेवेंथ प्लान, यहाँ पे गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स वर एट हाई लेवल। जब गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ जाती है तो आपका डेट बढ़ता है, तो दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। डेट बढ़ता है तो गवर्नमेंट की कैपेसिटी फ्यूचर में इंपैक्ट हो जाती है।
ओके, सो दिस वाज इट। और हमारा जो एवरेज ग्रोथ था वो हमारा 4% था। एंड हियर इवन पाकिस्तान वाज ग्रोइंग एट 6% प्लस, एंड जो ईस्ट एशियन टाइगर थे, ईएटी बोलते हैं, ईस्ट एशियन इकोनॉमी, एशियन टाइगर्स, तो ये जो कंट्रीज थे इन्होंने एक अलग ही लेवल पर जो है डेवलपमेंट 10% 11% ग्रो कर रहे थे। और सो वी कुड नॉट इवन कम टू क्लोज। इंडिया इज अ बिग कंट्री, वी कैन नॉट कंपेयर इंडिया विद सिंगापुर। बहुत इजी होता है आप इंडिया को किसी कंट्री से कंपेयर कर देते हो, चाइना इज डूइंग वेल और दिस इज डूइंग वेल। सी एवरी कंट्री इज डिफरेंट इन देयर ओन सेटअप, but again when we compare we need to understand that why a country is doing good and why other country is not doing so good. If India is not able to grow like South Korea, because India is a big country, India has its own constraint, India is a country with so many small states, division जो है हर स्टेट का अपना एक डेवलपमेंट मॉडल है, अप्रोच है, उसके उनके अपने कंस्ट्रेंट्स है। एंड इन अ फेडरल सिस्टम यू कैन एक्सपेक्ट वेरी लिटिल फ्रॉम एवरीबडी। सो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर एलाबाइज, बट यस कुछ गलतियां भी हुई हमारे लीडर्स के थ्रू। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू मेक अ जजमेंट, वो जजमेंट डेकेड्स बाद होता है, बिकॉज अभी तो इट माइट सीम कि यही चीजें वर्क कर रही हैं, बट इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो। बॉर्डर प्रॉब्लम्स हो गए, वॉर्स हो गए, ऑयल, एनर्जी में ऑयल नहीं था हमारे पास, सो दैट इज आल्सो प्रॉब्लम ऑलवेज। आज भी हम लोग ऑयल की वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो वी कैन से दैट दिस पीरियड जो हमारा ये प्री रिफॉर्म, ये पूरा जो आपका जो टेबल है ये प्री रिफॉर्म पीरियड है। इसमें आप ये जो हर प्लान में क्या क्या हुआ ये आप पढ़ लीजिएगा, आई फोकस ऑन द मैक्रो पार्ट। तो यहाँ पर जो हमारा डेट था वो काफी बढ़ गया था। एक और इसमें नोटेबल अचीवमेंट मैं कहूंगा, एंड दैट नोटेबल अचीवमेंट केम इन द पीरियड ऑफ 80s। ठीक है, तो जैसे ये जो नोटेबल अचीवमेंट मैं कहूंगा, ये वाला जो फेज था 80s में, इस वाले फेजेस में हमने क्या किया, वी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम सोशलिज्म। हम सोशलिज्म से हम वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। एज आई डिस्कस्ड, जो हमारी साउथ एशियन ईस्ट एशियन इकोनॉमीज थी, या फिर जो एक और डेवलपमेंट मॉडल था जो ईस्ट एशियन कंट्रीज का, इन्होंने काफी अच्छा किया था। और इनके अच्छा करने का कारण ये था कि ये जो इकोनॉमीज थी दे फॉलोड एन आउटवर्ड पॉलिसी। तो हमने 80s में ही हमने ये पॉलिसी की तरफ हमने टिल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। वी स्टार्टेड अलाउइंग, हमने हमारी जो पॉलिसी थी उसको लिबरल बनाना शुरू किया था, बिकॉज इन द पीरियड ऑफ 50 to 90 गवर्नमेंट कंट्रोल था, एंड रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी, पीएसयू वर इन लॉसेस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अभी गवर्नमेंट सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट सब कुछ प्राइस डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट इकोनॉमी की डिमांड को भी मीट नहीं कर पा रही है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जॉब भी गवर्नमेंट दे रही है, एंड इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री ऑफ मे बी 36 करोड़ तो इंडिपेंडेंस के अराउंड थे, 51 में थे। एंड इस पीरियड में तो एक पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा एक्सप्लोजन हुआ था। ऑन एन एवरेज अगर 1950 से लेकर 1980 के फेज में अगर देखोगे तो इंडिया की जो एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 25% पर डेकेड, यानी हर डेकेड में हम 25% ग्रो कर रहे थे। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आप एक कंट्री को कैसे फीड करोगे, एंड फॉर दैट ओनली वे वाज डेवलपमेंट, ओनली वे वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन। so that industrialization did not happen to the extent we wanted. ठीक है, ये जो सेकंड था पोस्ट रिफॉर्म पीरियड जिसको हम कहते हैं, ये पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में 1991 में किया गया। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकड्रॉप ऑफ दिस रिफॉर्म्स। पीवी नरसिम्हा राव वाज द लीडर ऑफ दिस रिफॉर्म, प्राइम मिनिस्टर। ये अलग बात है कि आप हमेशा डिबेट्स में और आर्टिकल्स में आप मनमोहन सिंह का नाम सुनते हो, बट अगर कोई इंडिया में कोई अच्छा काम हो रहा है, मोदी को क्रेडिट जा रहा है या मोदी को क्वेश्चन कर रहे हो, तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कंट्री, राइट? बिकॉज मनमोहन सिंह का अपना रोल है, दैट वी आर नॉट क्वेश्चनिंग, बट द मनमोहन सिंह वाज अ टीम मेंबर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव एंड पीवी नरसिम्हा राव। सो इसको मैं इसको राव मनमोहन रिफॉर्म बोलूंगा, और या फिर मैं नरसिम्हा राव रिफॉर्म्स बोलूंगा, बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज क्रेडिटेड टू, बिकॉज ही टुक लॉट ऑफ पॉलिटिकल रिस्क इस रिफॉर्म्स को लाने में। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि लेट 80s में हमारी इकोनॉमी में, लेट 80s में हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत डेट बढ़ने लगा। ओके, हमारा डेट बढ़ने लगा, हमारा ऑयल क्राइसिस हुआ। ठीक है, गल्फ वॉर, जो कुवैत में वॉर हुआ था तो ऑयल क्राइसिस हो गया। देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आल्सो, गवर्नमेंट चेंज हुई, राजीव गांधी गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट आई, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। सो ऑल दीज problem impacted our development to large extent.
तो हमारा ग्रोथ जो है काफी हद तक इम्पैक्ट हुआ था, एंड दिस वाज समथिंग दैट हैड टू बी इम्प्रूव। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे डेट जो थे, पब्लिक डेट, दे वर वेरी हाई। हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, महंगाई, ओके, इनफैक्ट हाइपर स्टेज पे पहुंच गया था, हाइपर इन्फ्लेशन, मोर देन 15-20%, 25-30% इन्फ्लेशन। देन वी आल्सो फेस्ड अ प्रॉब्लम, हाई डेफिसिट। डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट का डेफिसिट, ठीक है। और इन टॉप ऑफ ऑल वी वर फेसिंग अनदर प्रॉब्लम कॉल्ड बीओपी क्राइसिस, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं, वेयर आपके जो फॉरेक्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, तो फॉरेक्स दे ऑलमोस्ट डिप्लीटेड, ये डिप्लीट हो गए थे, एंड दे वर जस्ट टू ओनली फॉर 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट के लिए सफिशिएंट थे। सो ये प्रॉब्लम्स जो है हमें लेट 80s में देखने को मिली थी। ओके, सो अंकित का एक सवाल है। अंकित कह रहा है, सर नरसिम्हा राव के ऊपर बहुत प्रेशर था बाहर से, उनपे शायद इसका कोई अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वेल, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अंकित समझना कि कोई भी इकोनॉमी के अंदर आप कोई जब इस तरह का मैसिव डिसीजन लेते हो, बिकॉज नरसिम्हा राव गवर्नमेंट वाज नॉट अ मेजोरिटी गवर्नमेंट, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, इट वाज माइनॉरिटी गवर्नमेंट, पहली बात। दूसरी बात, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर जो डिसीजन लिए गए थे उसमें एक तो नरसिम्हा राव वाज आल्सो रिस्पांसिबल, बट सी इट वाज अ कांग्रेस गवर्नमेंट, और कांग्रेस नेवर लुक्स बियॉन्ड नेहरू एंड इंदिरा। नेहरू इंदिरा के बियॉन्ड आज भी नेहरू इंदिरा की ही बातें होती है। सो आप नेहरू इंदिरा की लेगेसी को क्वेश्चन करके, एंड यू आर पुटिंग अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, एंड यू आर टेकिंग अ डिटूर, आप एक यू टर्न ले रहे हो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम में। बट आई बिलीव इट वाज नॉट ओनली बिकॉज देयर वाज अ क्राइसिस, बट आल्सो द स्टेज वाज सेट फॉर इट, कि ये प्रोसेस 1980s में ही स्टार्ट हुआ था, एंड स्टेज वाज रेडी फॉर इट, सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और दूसरा एक रीजन ये था कि 1980s में, लेट 80s में जो पेरिस ट्रॉयका रिफॉर्म्स आए थे यूएसएसआर में, तो यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेट हो गया था लेट 80s और लेट 80s 90s के बिगिनिंग में। तो डिसइंटीग्रेशन जो इसका हुआ था, दैट आल्सो काइंड ऑफ हेल्प्ड इंडिया टू अडॉप्ट दिस मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिफॉर्म किया, इकोनॉमिक मॉडल हमारा चेंज हुआ, और हमने क्या किया, सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट मॉडल पे चले गए। दो हमारा इकोनॉमिक मॉडल आप हमेशा किताब में पढ़ोगे, वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। यस, वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल इन द पीरियड ऑन द प्री रिफॉर्म पीरियड। जो प्री रिफॉर्म पीरियड था, इसमें हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी था वो सोशलिस्ट बेंट था उसमें, ठीक है, देयर वाज सोशलिस्ट बेंट। और हमारा जो पीरियड था इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ये मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल विद कैपिटलिस्ट बेंट आप कह सकते हो। हम आज भी आज भी वी कैन नॉट कंपेयर विद यूएसए, वी कैन नॉट कंपेयर विद ब्रिटेन, बिकॉज उनके यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, सिंगापुर हो गया, या फिर साउथ कोरिया हो गया। आज भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल है, रेलवेज इज टुडे आल्सो रन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के 300 पीएसयूज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 900 पीएसयूज स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं। यू कैन नॉट, दिस इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है। सच सिचुएशन इज नॉट देयर इन द अदर कंट्रीज। तो एक तरह हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये अलग बात है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, दैट हैज बीन रिड्यूसिंग ओवर द इयर्स, और प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में हमने जो है डिटूर किया, बट कैपिटलिस्ट सिस्टम में डिटूर हैड बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द क्राइसिस। सो वी इट वाज आल्सो अ फेज ऑफ द क्राइसिस जो हमने फेस किया। और यहाँ पे आप ग्रोथ देखो, हमारे ग्रोथ भी बढ़ गए, टारगेट्स भी बढ़ गए हैं, एंड एवरेज ग्रोथ रेट वाज वे टू हाई इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। ऑलमोस्ट डबल हो गया था ग्रोथ रेट जो हमारा प्री रिफॉर्म पीरियड में देखने को मिलता है। इसमें आप ये देख लेना, हर प्लान में क्या क्या हमने फोकस किया, रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ आए, ठीक है। अगेन दीज आर सम चांस, यहाँ पे मैक्रो लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है वो हमको देखना पड़ेगा। नाउ व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग? क्या 1950 से 1990 या क्या लॉस्ट डिकेड थे इंडिया के? क्या हमारा जो सोशलिस्ट मॉडल था वो मिसप्लेस्ड था? इफ इट वाज मिसप्लेस्ड, can we say everything was bad? Can't we say that there were some rosy pictures, there were elements which were good in the India's economic sense? क्या इंडिया ने कुछ अचीव नहीं किया? No, we had our own set of achievements. It's like you are targeting, आपके टारगेट्स बहुत ज्यादा थे, आपके टारगेट एम्बिशियस थे। You targeted that you have to develop and industrialize the nation. अगले 3-4 decades में आपको इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा।
बट हम नहीं कर पाए इंडस्ट्रियलाइज. इवन टुडे इंडिया इज नॉट एन इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी. वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्फ विद हम अपने आप को भूल जाइए यूएसए या फिर यूरोपियन नेशन से भूल जाइए. वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्फ विद नो फिलीपींस. We cannot compare ourselves with Indonesia. We cannot compare ourselves with these countries. आपके सिंगापुर हो गए, साउथ कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, इनसे भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यहाँ हुआ वो भी इंडिया में नहीं हुआ है. तो ये जो 3-4 डेकेड थे, बट रिमेंबर उसमें कुछ अचीवमेंट भी थे. एज आई सेड, एवरी कंट्री इज डिफरेंट. एवरी कंट्री कंस्ट्रेंट्स अलग होते हैं. इंडिया इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री. इंडिया वाज अ कंट्री विद डेमोक्रेसी. देयर वाज नो डिक्टेटरशिप्स. इन कंट्रीज में कई जगह जो है एक तरह से बेनोवोलेंट डिक्टेटरशिप देखने को मिला था, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट साउथ कोरिया, सॉरी, इफ आई टॉक अबाउट सिंगापुर या फिर मलेशिया, या हर यहाँ पे डेमोक्रेसी थी. बट इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही फ्रीडम है ना. आप तो कुछ भी कर लो इंडिया में. यू कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन राइट आर्टिकल, यू कैन राइट पोस्ट, यू कैन डू एनीथिंग. ये अलग बात है कि गवर्नमेंट के लोग भी पावर मिसयूज करते हैं, बट इंडिया में जो फ्रीडम है वो कहीं नहीं है. lot of people say that India में जो जो democracy है, that has been safety wall of the problem. Because if I compare India with other country, तो इंडिया में डेमोक्रेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड. अभी आप नाराज होगे क्या करोगे? गवर्नमेंट को हटा दोगे. बहुत परेशान किया तुमने 5 साल, अब अगले 5 साल तुम वापस नहीं आओगे. ठीक है, तो आप जब आप क्या करते हो, आप गवर्नमेंट ही चेंज कर देते हो. एंड यू फील वेरी हैप्पी. यू फील हैप्पी दैट चलो अब तो देख लिया हमने, देख लिया कि जो हमें करना है हम बता देंगे तुम्हें. अब गवर्नमेंट को आपने चेंज कर दिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. और फिर सो दिस इज समथिंग दैट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूं जो हमें देखने को मिला है इन दिस पीरियड. बट द प्लानिंग में देयर आर सर्टेन ऑप्टिमिस्टिक थिंग्स एज वेल. देयर इज अ रोजी पिक्चर एंड देयर वर चैलेंजेस एज वेल. सो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई बिलीव इन द प्लानिंग वाज दैट इंडिया हैज बीन एबल टू सर्वाइव द कंट्री. हमारा नेशनल इनकम इंप्रूव हुआ है. हमारी जीडीपी आज 3 ट्रिलियन है. टुडे वी आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. वी आर 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ये अलग बात है, पॉपुलेशन में हम सेकंड है. ठीक है, हमारे सोशल इंडिकेटर्स पहले से काफी इंप्रूव हुए हैं. इफ यू कंपेयर आवरसेल्फ विद द कंट्रीज, ये हम कहते हैं कि हम पहले 100 में नहीं है सोशल इंडिकेटर्स में. इंफ्रास्ट्रक्चर आज रिलेटिवली स्ट्रांग है. सीमेंट हो गया, स्टील हो गया. यहाँ पे एक तरह से देयर इज सेल्फ रिलायंस. वी डोंट नीड आउटसाइड डिपेंडेंसी. ठीक है, बट फेलियर्स भी है. पॉवर्टी इज अनदर एरिया. इन्फ्लेशन इंडिया में आज भी क्या है, हमारे इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है. फूड सप्लाई कभी डिस्टर्ब होती रहती है. आप सोचो ना, इतनी बड़ी कंट्री है, इतना सब कुछ है, बट आज भी हमारे यहाँ सप्लाई साइड बॉटलनेक होते हैं. आज भी हमारे यहाँ सडनली कोई सामान महंगा हो जाएगा. वी डू नॉट हैव अ बैकअप. स्ट्रेटेजिक जो हमारे अप्रोचेस हैं वो शायद अभी बहुत बिगिनिंग स्टेज पे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वे बिग प्रॉब्लम. इनफैक्ट मुझे अंडर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है. अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आदमी की कैपेसिटी जो है उससे कम उसको मिल रहा है. आपको 8 आवर्स आपका एवरेज इनकम कम है, एवरेज वेजेस कम है. जो हमारी कंट्री के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट में आपको 8 घंटा काम मिलना चाहिए, तो हम शायद हमें 4 घंटा ही काम मिल रहा है. हमारे जो मिनिमम वेजेस हैं वो कम है. तो ये एक ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है. रीजनल बैलेंसेस इम्बैलेंसेस हैं. अगर आप बिहार को कंपेयर करो, बंगाल को कंपेयर करो, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, यूपी, ये इन स्टेट्स में बहुत प्रॉब्लम है. शायद चीजें पहले से इंप्रूव हुई हैं, बट द प्रॉब्लम इज देयर. सो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं. अगर मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज आउटपुट सिर्फ 3-4 स्टेट से आता है. ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड योर तमिलनाडु. ये 4 स्टेट इंडिया का 60% मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. कैन यू बिलीव दैट? और इंडिया में 29 स्टेट्स हैं या 28 स्टेट्स हैं, तो सिर्फ 60% कमिंग फ्रॉम द 4 स्टेट. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया? डोंट यू थिंक दैट वी शुड क्वेश्चन आवर पॉलिसी मेकर्स? हो सकता है कि इन एरियाज की कुछ अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हो, बट व्हाट अबाउट अदर एरियाज? व्हाट अबाउट यूपी? व्हाट अबाउट नॉर्थ ईस्ट? व्हाट अबाउट पंजाब, हरियाणा एक एक्सेप्शन है जहां पे एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, दैट दे गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट. तो इंडिया में आज भी इंडिया इज मैल न्यूट्रिशन. इंडिया इज जो इंडिया की पॉपुलेशन है, हमारा वर्ल्ड का 1/3 मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन इंडिया में है. हमारे यहाँ यंग जो बच्चे हैं उनको फूड अच्छा नहीं मिल पा रहा है. डू यू थिंक इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन एबिलिटी? एंड हम ऐसा नहीं, हम वी आर टॉकिंग अबाउट 70 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. हम 70 इयर्स के हम बात की बात कर रहे हैं. सो डेफिनेटली देयर आर एरियाज व्हिच नीड्स टू बी क्वेश्चन, बट ओवरऑल पिक्चर में अच्छी भी चीजें थी.
इंडिया सर्वाइव्ड एज अ कंट्री एंड नाउ वी हैव टू लुक फॉरवर्ड एंड वे फॉरवर्ड। हमने फिर बाद में इंडिकेटिव प्लानिंग मॉडल फॉलो किया। इससे पहले जो हमारा प्लानिंग मॉडल था वो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी था। इसके बाद हमने फॉलो किया अपना इंडिकेटिव प्लानिंग मॉडल। इंडिकेटिव प्लानिंग मॉडल में गवर्नमेंट टू का बैक सीट और पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से कोलैबोरेटिव था, कोलैबोरेशन था। और यहाँ पे आप यू आर आल्सो आस्किंग सिविल सोसाइटी, एनजीओ, और ये थोड़ा सा डेमोक्रेटिक अप्रोच था। इट वाज बॉटम अप अप्रोच। जो प्रीवियस प्लानिंग था ये पूरा पूरा सेंट्रलाइज था, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था, अथॉरिटेटिव था, टॉप डाउन था, ठीक है। बट ये जो प्लानिंग मॉडल था इट वाज डिफरेंट एंड हियर वी अलाउड प्राइवेट सेक्टर अ सब्सटैंशियल रोल। गवर्नमेंट का रोल चेंज हो गया। गवर्नमेंट विल नॉट बी द मेजर प्लेयर इन द इकोनॉमी, रादर गवर्नमेंट विल बी अ फैसिलिटेटर। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, गवर्नमेंट इकोनॉमी को चलाएगी नहीं, गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी। गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक, गवर्नमेंट एक एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, या गवर्नमेंट एक तरह से बिजनेस कैन नॉट वर्क इन वैक्यूम, सो गवर्नमेंट विल प्ले दैट रोल वेयर बिजनेस कैन फ्लरिश। So government will play a role of initiator, facilitator, rather than controller and regulator. और यहाँ में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कहा कि भाई you take the lead, and the philosophy that was that business of the government is not to be in business. गवर्नमेंट का बिजनेस करना नहीं है. Let the private player take the lead. Yes, government will be in some areas which are so called strategic areas, वहां पे हम कह सकते हैं। और इंडिकेटिव प्लानिंग जो है वो जापान फ्रांस से लिया गया था एंड दैट इज हाउ वी मूव। एक और प्लानिंग था जो मॉडल था which were called as रोलिंग प्लान, ठीक है। तो ये रोलिंग प्लान मॉडल ये 1960s में डिस्कस हुआ था। तो यहाँ इसमें 3 तरह के प्लान होते हैं, एनुअल प्लान, देयर इज अ 5 ईयर प्लान एंड देयर इज अ 10-15 ईयर का पर्सपेक्टिव प्लान होता है। ये मॉडल अडॉप्ट करने की बात हुई थी बट इट वाज जस्ट इन डिस्कशन। सो दिस वाज आल्सो अ प्लान जो शायद आपको पता होना चाहिए। सो इट हैज एनुअल प्लान, 5 ईयर प्लान एंड एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान। सो दिस वाज आल्सो 1977 में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, they were looking to introduce this plan. Okay, then financial planning एंड फिजिकल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप क्या करते हो, टारगेट सेट करते हो, रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हो। प्लानिंग का जो पूरा कंसेप्ट था उसमें ये था कि गवर्नमेंट विल बी गवर्नमेंट की एक बॉडी होगी, थिंक टैंक होगी, जो पूरी कंट्री को कैसे डेवलप करना है उसको आप उसका स्ट्रेटजी बनाओगे, प्लान बनाओगे, रिसोर्सेज को अप्रेज करोगे एंड यू विल सेट अ 5 ईयर टारगेट्स इन नॉट ओनली द मैक्रो ऑल इंडिया टारगेट बट सेक्टोरल टारगेट करोगे एंड यू विल एक्सपेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू डिलीवर ऑन ग्राउंड। सो दैट वाज इट। तो इस पूरे प्लानिंग मॉडल में एक बड़ा कंसर्न था कि अथॉरिटेटिव था, टॉप डाउन था, सेंट्रलाइज था, states had no say and this was always despised by the state. प्लानिंग कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट हमेशा पसंद नहीं करते थे। और प्लानिंग कमीशन, दो इट वाज अ थिंक टैंक, प्लानिंग कमीशन के पास एक और बहुत बड़ा चैलेंज एडवांटेज भी था और देयर वाज अ लिमिटेशन आल्सो दैट इट वाज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और जब प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन को हेड करते थे तो प्लानिंग कमीशन हैड लॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर और ये कहीं मेंशन नहीं था, बाय लॉ नहीं था। वो रिसोर्सेज दे रहे हैं, वो रेवेन्यूज ग्रांट्स दे रहे हैं और ये ग्रांट्स जो थे वो प्लान ग्रांट्स थे और ये क्या थे, कंडीशनल ग्रांट थे। कंडीशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही कैसे होगा। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं दैट प्लानिंग कमीशन वाज लाइक अ सुपर कैबिनेट। गवर्नमेंट के अंदर प्लानिंग कमीशन के जो लोग डिसाइड कर रहे हैं वही चल रहा है, मे बी मिनिस्टर्स का भी कोई से नहीं है, सो दैट वाज हाउ इट वाज बिलीव्ड। तो 91 के बाद हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द क्राइसिस। और यहां पर हमने वी चेंज थिंग्स एंड दैट वाज द वी ब्रॉट न्यू रिफॉर्म्स अशर किए गए एंड न्यू। तो ये अगला जो सेकंड चैप्टर में एंड में हमने देखा कि ये न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग मॉडल आया एंड हियर इट वाज अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर। और ये 3 एलपीजी मॉडल भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसको पढ़ लीजिएगा ये पॉइंटर्स को। सो विल डिस्कस अबाउट
कि इस मॉडल में क्या हुआ एंड थिंग्स चेंज। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व मैंने डिस्कस किया था, बीओपी क्राइसिस था। बीओपी क्राइसिस मतलब फॉरेक्स के पास पैसा नहीं है, आपके पास डॉलर्स नहीं है एंड इंडिया हैड फोर्स्ड। बट देखिए ना, इकोनॉमिक्स की किताबों में जब आप पढ़ते हो उसका उसमें आपको पार्शियल पिक्चर नजर आता है। व्हाट आई टेल यू दैट द स्टेज वाज सेट, और ये स्टेज बहुत पहले 1989 के बाद ही ये स्टेज सेट होना। इस पूरे फेज में ये जो फेज था वो बहुत ही चैलेंजिंग फेज था। दिस फेज सेट द पेस फॉर 91। तो 91 में थिंग्स वर ऑलमोस्ट देयर, होना ही था। इट वी जस्ट नीडेड अ स्टेबल गवर्नमेंट टू डिलीवर और एग्जीक्यूट ऑन ग्राउंड। तो इकोनॉमिक मॉडल जो हमने चूज किया दैट वाज ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस मॉडल, और फिर हमने जो है यहाँ कह लीजिए वी moved of liberalization, privatization and globalization. So chapter 1 and 2 of NCERT is over. Now we'll go to chapter number 3. LPG model liberalization, यानी गवर्नमेंट अब लिबरल हो गई, गवर्नमेंट लेस रूल, नो रूल, लेस रूल, रूल ऑफ व्हाट, बिजनेस, रूल ऑफ व्हाट, रेगुलेशन, रूल ऑफ लॉ। कि गवर्नमेंट फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल प्लेयर को अलाउ करोगे। शायद आपने नहीं देखा है बट मैं आपको बताऊं, I had witnessed 1990s. I have witnessed 80s also. And I was a very observant child. मैं बचपन में बहुत observant था, तो मुझे 80s का अभी भी याद है, 90s भी याद है। I remember 91 के बाद किस तरह से हमको ऑप्शन नजर आते थे, गुड्स एंड सर्विसेज में, हर जगह आप कोई सामान खरीद रहे हो तो पहले सिर्फ इंडियन फर्म्स थे। 91 के बाद यू सॉ फॉरेन प्लेयर्स, एमएनसीज का एंट्री हुआ, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आया, टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिली, प्राइवेट बैंक्स आए, सो चेंज एवरीथिंग। वी न्यू सेंटर्स गॉट डेवलप्ड, आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ। तो ये सारा हुआ कब हुआ? दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मेजर डोमेस्टिक में थे, जहां पे आपने कहा कि गवर्नमेंट विल रोल बैक और प्राइवेट को अलाउ करोगे, कंपटीशन होगा। और जहां तक एक्सटर्नल एरिया है, यानी फॉरेन प्लेयर्स हैं, यहां से इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, एंड देन दे विल कैप्चर द इंडियन मार्केट, या फिर वो कंपटीशन लेके आएंगे। सो दैट वाज लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन आल्सो हैपेंड इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया की चैलेंजेस भी थी, हमारे डेफिसिट ज्यादा थे, एंड वी बिलीव दैट नाउ वी हैव टू फाइंड अ न्यू मॉडल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये हमने ये भी कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस वाज मेनली बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे तो हमारे ग्रोथ टारगेट अचीव हुए थे, बट इट्स लाइक आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, टारगेट मीट कर रही है, बट यू आर टेकिंग लोन्स आल्सो पैरेलली। तो हमारे जो डेट थे वो बहुत अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गए थे इन द पीरियड ऑफ लेट 80s। ठीक है। इंडिया का टैक्स जीडीपी रेशियो वाज वेरी लेस। हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो था, आज भी कम है, तो हमारा टैक्स जीडीपी वाज इज वेरी लो। आज देखते हो गवर्नमेंट की कैपेसिटी क्यों है? क्योंकि टैक्स को पे ही नहीं करता है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे या प्राइवेट जॉब में जाओगे तो आपको टैक्स मजबूरी होगा पे करने का। बट इंडिया में जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कम टैक्स पे करती है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में एवरेज इनकम ही कम है एंड द टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव। जो ज्यादा अर्न करेगा वो पे करेगा, जो नहीं अर्न करेगा वो नहीं पे करेगा, या जो कम अर्न करेगा वो नहीं पे करेगा। इंडिया में 5 लाख के नीचे जो अर्न करता है वो टैक्स 0 रुपीज पे करेगा, और 5 लाख से ऊपर अर्न करने वाले इंडिया में एवरेज कितने लोग हैं आप सोचिए। और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते ही नहीं है कि 5 लाख से ऊपर शो कर रहे हैं। कोई बिजनेसमैन है, उसकी इनकम 20 लाख है तो वो 5 लाख शो कर रहा है, तो वो टैक्स 0 दे रहा है। तो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट कि हमारा जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट का वो भी लिमिटेड था, एंड दैट इज वेयर दे फेल्ट दैट नाउ वी हैव टू चेंज एंड वी हैव टू ब्रिंग अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम। और हमारे जो पीएसयूज थे वो लॉसेस में थे, दे कुड नॉट कॉम्पीट विद फॉरेन प्लेयर्स, और हमारी इकोनॉमी में बर्डन जो है एक अलग ही लेवल पे देखने को मिल रहा था। बैकग्राउंड क्या था? इन लेट 80s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगैन टू एक्सीड बियॉन्ड द रेवेन्यू। हमारे बोरोइंग्स अनसस्टेनेबल हो गए, फॉरेक्स रिजर्व कम हो गए, एंड हमारे पास इंपोर्ट के लिए पैसा नहीं था। डॉलर जो था हमारा, वो डॉलर रिजर्व रिपीट हो गया था। द ओनली वे वाज टू गेट लोन फ्रॉम आउटसाइड, या फिर हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर से आए। तो हमने जब वी वेंट टू आईएमएफ गए, हम वर्ल्ड बैंक गए, तो उन्होंने कहा देखिए इकोनॉमी आपके ऐसे चल नहीं सकती है, यू हैव टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, और रिफॉर्म नहीं करोगे तो मे बी आप 6 महीने बाद फिर हमारे पास आओगे। सो लेट्स रिफॉर्म द इकोनॉमी, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, एंड द स्टेज वाज सेट। ऐसा नहीं था कि इंडिया रिफॉर्म करना नहीं, इंडिया भी रिफॉर्म करना चाहती थी, बिकॉज इकोनॉमिक्स के बीच एक क्वेश्चन मार्क हो गया था दैट ओनली वे फॉरवर्ड इज दैट यू रिफॉर्म द इकोनॉमी, और अब कैपिटलिस्ट इज द वे फॉरवर्ड।
और जो एक्सेप्टेड सोशलिज्म या कम्युनिज्म, बिकॉज देखो ना, चाइना, एक तो यूएसएसआर था और दूसरा चाइना था, यही दो कंट्रीज थे विच वर लीडिंग द यू कैन से द फ्लैग ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया, यानी सोवियत मॉडल क्वेश्चन हो गया, हमने सोवियत मॉडल को फॉलो किया था। चाइना ने 1978 में भी अपनी, चाइना जो कम्युनिस्ट मॉडल था उसने भी मार्केट सोशलिज्म की तरफ मूव कर लिया। तो मतलब ये जो लोग फ्लैग बेयरर्स थे, इफ दे वर एबल टू चेंज देयर इकोनॉमिक मॉडल, बिकॉज उनको भी लग रहा था कि उनका जो ओरिजिनल मॉडल है, मार्क्सियन मॉडल है या लेनिन का मॉडल है या माओ का मॉडल है, दैट इज नॉट सस्टेनेबल एनी मोर, एंड ओनली वे इज टू जनरेट बिजनेस, और उसमें प्राइवेट का एंट्री होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो वी इंडिया अप्रोच वर्ल्ड बैंक, जिसको आईबीआरडी बोलते हैं, आईएमएफ, वी रिसीव लोन्स, एंड इंडिया अग्रीड टू कंडीशनैलिटीज ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। उन्होंने कहा कि आप करोगे तो हम लोन तभी दोगे जब इकोनॉमी को ओपन करोगे, एंड वी एग्रीड, एंड दैट इज हाउ वी वर एबल टू मूव फॉरवर्ड। नाउ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो ब्रॉडली आप ये कह सकते हो, there were two kind of broad measures, one were called as stabilization measures और दूसरे हमारे रिफॉर्म मेजर थे। रिफॉर्म, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म, ये सारे हुए। इकोनॉमी में प्रॉब्लम था तो पहला फोकस क्या था, शॉर्ट टर्म, इकोनॉमी का इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, इकोनॉमी के डेट कंट्रोल करो, यू नो। लॉन्ग टर्म वो स्ट्रक्चर, आप पूरी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कैपिटलिस्ट सिस्टम पे जा रहे हो, तो जब कैपिटलिस्ट सिस्टम पे जा रहे हो तो पूरी इकोनॉमी का रूल रेगुलेशन, एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, यू नो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, यू नो, रिजिडिटीज हटा रहे हो, बैरियर्स कम कर रहे हो, रेड टेपिज्म, यानी आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो क्या नजर आता है आपको, वहां जाते हो, यू नो, यू सी अ ह्यूज लिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट यू सी। सो द फोकस हियर इज टू इंश्योर कि हम कैसे, यू नो, रिफॉर्म्स करें और ये मेजर जो है वो लॉन्ग रन में बिजनेस को सपोर्ट करें। सो दिस इज पीवी नरसिम्हा राव है, मनमोहन सिंह है, एंड यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का ऑपरेशन हो रहा है, यू कैन सी दिस। So government introduced variety of policies which come in the category of liberalization, privatization and globalization. Liberalization की आप liberal policies कर रहे हो, आप ease of doing business कर रहे हो, आप domestic या foreign player में, इंडिया में आप, you know, private को allow कर रहे हो, you are also allowing foreign players. Privatization में roll back of state है, आप इंडियन जो PSUs है उनको आप सेल कर रहे हो, ठीक है, और यू आर गिविंग नो मे बी ऑप्शन टू द प्राइवेट प्लेयर। ओके, सो अंकित इज सेइंग सम मार्केट सोशलिज्म, यानी ओके अंकित, लेट मी कंप्लीट। मार्केट सोशलिज्म मैं एंड में डिस्कस कर लूंगा। चाइना का एक अलग ही मॉडल है, दैट डू नॉट, ये मॉडल पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं चलता है। चाइना में प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है भी और नहीं भी है ठीक है, आई विल कम टू दैट। इसको समझने के लिए हमको लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना होगा, तो वहां पे मैं आपको चाइनीज मॉडल डिस्कस करूंगा, बट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ चाइना मॉडल क्या है। ठीक है, तो आप बिजनेस को ग्रो करा रहे हो, पीएसयू को सेल करोगे, एंड नाउ पीएसयू विल नॉट टेक द लीड रोल। इंडिया इकोनॉमी में लीड रोल जो होगा पीएसयू नहीं करेगा, बट यू नो नाउ प्राइवेट प्लेयर विल डू। और ग्लोबलाइजेशन, व्हेन यू डू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ऑटोमेटिक ग्लोबलाइजेशन होगा। तो ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट इंटीग्रेटिंग और कपलिंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। आप कपलिंग कर रहे हो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, इंडिया इकोनॉमी की। ठीक है, तो ये हमारा जो है वर्ल्ड एंड इंडिया कपलिंग। तो इकोनॉमिक मॉडल जो है, ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, मूवमेंट ऑफ पीपल हो गया, ये सारा जो है स्टार्ट हो गया। तो लिबरलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला तो कंपटीशन लाएंगे। इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोटेंशियल है। देखिए ना, हमारे यहाँ एक कम्युनिटी है जो सिर्फ बिजनेस करना जानती है। ठीक है, उनको सिर्फ बिजनेस करना सिखाया जाता है। बिलीव मी, दे आर, उनका जो सोच है अलग ही लेवल पे होता है। सो वी हैव टू अनलीश द एनिमल एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट जो है कंट्री के अंदर, वो एक बहुत जरूरी है। तो एनिमल स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के अपने वर्च्यूज है। क्या वर्च्यूज है अभी हम डिस्कस करेंगे। यू रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर,
क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पब्लिक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता है, कॉम्पीट नहीं कर सकता है। वेरी गुड एग्जांपल इज बीएसएनएल, कर रहा है कॉम्पीट। अनदर एग्जांपल इज एयर इंडिया। आपको लगता है कि आज के एनवायरमेंट में क्या इनके पास फ्रीडम नहीं है बिजनेस करने का? बिल्कुल है, बट दे कैन नॉट कॉम्पीट। सर्विसेज मिल रही है बट उतनी अच्छी नहीं है। हम रेलवेज की बात करते हैं, रेलवे क्या एफिशिएंट है, बट अगर सोच लो प्राइवेट होता रेलवे में, प्राइवेट का ऑप्शन होता तो वो कैसे होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट यू कैन नॉट इमेजिन, बिकॉज कभी आपने सोचा नहीं कि प्राइवेट रेलवे भी चलेगी, बिकॉज फॉरेन नेशन में तो चलती है। ओके, सो दैट इज तो लिबरलाइजेशन जो मेजर्स थे हमारे, they were mainly focused about promoting the private player and unleashing the economic potential of the country, animal spirit of spirit of entrepreneurship, boosting competition and roll back of state जहां गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होगा। ओके, सो रिफॉर्म्स में क्या थे? लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हम लोग नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए। ओल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट लेड था और यहाँ पे हमने कहा प्राइवेट, नो लाइसेंसिंग, डिसइन्वेस्टमेंट किया हमने। ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस, ऑल दीज थिंग्स बिकम नेचुरल। सो फर्स्ट वाज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिफॉर्म्स हुए, जहां पे पहले लाइसेंसिंग का जो प्रोविजन था वो डाइल्यूट किया गया। नाउ हियर देयर आर नो लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फ्यू एरियाज, यानी आप कह लो कि फ्रीडम था यहाँ पे। पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ने रोल बैक कराया, द नंबर्स केम डाउन एक्सेप्ट फ्यू एरियाज। पब्लिक सेक्टर आर नाउ, अब यहाँ पे रेलवे में भी हम लोग देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, डिफेंस में भी हम प्राइवेट प्लेयर्स को हम एंट्री कराने का प्लान कर रहे हैं, R&D में, इनोवेशन में। वी ऑल्सो फोकस ऑन डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, लैंड एफिशिएंसी इंप्रूव करना हुआ, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन फार्मिंग में कैसे एंटर हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, एंड न्यू एरियाज वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू। we are also focusing on how do we improve our capacity, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, एंड फॉर दैट यू हैव टू गिव मार्केट, आपको मार्केट को ट्रस्ट करना होगा, मार्केट को फ्रीडम देना होगा। एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स नाउ वी आर अलाउड, पीपल आर फ्री, उनको ट्रेड करना है, बिजनेस करना है। अब वो पहले की तरह कंट्रोल रेगुलेशन नहीं है। टुडे, पहले इंपोर्ट हमारा क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी था, अब आप फ्री हो, कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट न्यू टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट, ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो अलाउड। ठीक है, ये अलग बात है कि हमें इंपोर्ट करना अगर अलाउड है, स्पेशली मशीनरी या कैपिटल गुड्स का हो या कंज्यूमर गुड्स का हो, तो हमको अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया इज नॉट लाइक अ स्मॉल कंट्री, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री विद 130 करोड़ ऑफ इंडिया की अपनी एक मार्केट है। तो हमें क्या है, इस मार्केट को कैटर करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन किसी भी चीज का करना चाहिए, कुछ भी हो। इंडिया हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो हमें उसको अनलीश करना चाहिए, बट इट विल रिक्वायर मेजर रिफॉर्म्स अक्रॉस एरियाज। तो लिबरलाइजेशन समवेयर उस डायरेक्शन में था। प्राइवेटाइजेशन की जहां तक बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने अपने पीएसयूज को बेच के एंड दे अलाउड, फॉर एग्जांपल मारुति की हम बात करते हैं, तो मारुति गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है, सो इट हैज टू लेवल, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, एंड आउटराइट सेल ऑफ पीएसयू। आप पीएसयू का आउटराइट सेल कर रहे हो, सो आप एक तो ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो पब्लिक टू प्राइवेट, यानी आप प्राइवेट को बेच रहे हो, या फिर गवर्नमेंट का शेयर कम कर रहे हो। सो पहले गवर्नमेंट का शेयर है उसको 90 कर रहे हो, 100 में 80 कर रहे हो, इवेंचुअली 50 से भी कम कर दे रहे हो। सो ये दिस इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूसिंग द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज हो गए, गवर्नमेंट पीएसयूज हो गए, वहां पर हमारा फोकस। फिर जो हमारा एक चीज और था, रिफॉर्म का मतलब, प्राइवेटाइजेशन का मतलब नहीं कि आप पूरा पूरा उठा के बेच दो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह है कि द लॉस मेकिंग एंटिटीज, जहां गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती है, वो आप प्राइवेट को दो, एंड द अदर एरियाज जो गुड वंस हैं, गुड पीएसयूज हैं, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको आप काफी फ्रीडम दो, गिव देम फ्रीडम, गिव देम ऑटोनॉमी, गिव देम यू कैन से फ्रीडम दीजिए, उनको ऑटोनॉमी दीजिए, उनको टारगेट दीजिए, उनको प्राइवेट प्लेयर की तरह कॉम्पीट करने दीजिए। और उसमें कैटेगराइजेशन है मिनी रत्ना,
नवरत्ना एंड महारत्ना, और इनको काफी ऑपरेशनल एंड यू कैन से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है. सो देयर इज ऑपरेशनल फ्रीडम एज वेल, बट विद अकाउंटेबिलिटी. टारगेट्स भी इनके सेट होते हैं, उसको भी मीट करना होता है. तो नवरत्ना केम, नवरत्ना पीएसयूज, नए तरह का पीएसयूज डिफाइन किए गए, और अब महारत्ना हो गया. प्राइवेटाइजेशन के अपने बेनिफिट्स हैं. प्राइवेटाइजेशन फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग उनका ग्रोथ पर ज्यादा होता है. दे आर नॉट फोकस्ड ऑन वेलफेयर. मार्केट मैकेनिज्म डिसिप्लिन इनके अंदर होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है. बिजनेस वेरी अडेप्टिव, ये अडेप्ट करते हैं, बहुत तेजी से अडेप्ट करते हैं. एंड दैट इज द बेसिस फॉर सर्वाइवल. इनोवेशन इज द की हियर. दे प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, यू नो, एब्सेंस, करप्शन कम होता है यहाँ पे, कंपटीशन को बूस्ट करते हैं. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. ना ब्रॉडली रिफॉर्म्स को मैं दो कैटेगरीज में देखता हूं. द फर्स्ट रिफॉर्म्स आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, जो हम लोग प्रोडक्ट मार्केट बोलते हैं. तो इनमें इसमें हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए, डी लाइसेंसिंग हो गया, ड्यूटीज हटाए, प्रोडक्शन टू डिपेंड ऑन मार्केट फोर्सेस. दूसरा हमने बैंक्स में, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म किया. बैंक्स हो गया, आरबीआई में हो गया, मार्केट्स में रिफॉर्म किए गए. टैक्सेशन रिफॉर्म्स बहुत मैसिव हुए. 1990 में 1990s में सबसे बड़ा चलैया कमेटी आई थी 1992 में, तो वहां पे रिफॉर्म्स, उसके बेस पे रिफॉर्म्स किए. सिंप्लीफिकेशन, वैट नया सिस्टम आया. फिर हमने टैरिफ बैरियर्स हटाए. हमने एक्सपोर्ट, एक्सचेंज रेट मार्केट ड्रिवन हो गया. नाउ इंडियन इकोनॉमी इज नो मोर फॉलोज द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी. वी आर ओपन फॉर फॉरेन प्लेयर्स, ट्रेड, एवरीथिंग. तो ये पहला जनरेशन था. ये 90s के रिफॉर्म्स थे जो शुरू में किए गए थे, 90s और बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी तक. एंड दीज आर कॉल्ड द सेकेंड रिफॉर्म्स, जो 21st सेंचुरी में हम कह रहे हैं. ये स्टिल पाइपलाइन में है. जैसे लेबर रिफॉर्म, आज भी देखो लेबर रिफॉर्म्स की डिबेट चल रही है. फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जीएसटी हो गया, एफडीआई एक्सपेंशन हो गया, बैंक्रप्सी कोड हो गया, ये सब रिसेंट में 4-5 साल में रिफॉर्म्स हुए हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, रोड इरिगेशन पे लैंड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज कम करने पे लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर यूज हो गया. सो दीज आर सेकंड जनरेशन रिफॉर्म. ये अलग बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को बड़ा अपोजिशन फेस करना होता है, क्योंकि आप बिल नहीं पे करना चाहते हो, यू नो, आप नहीं चाहते हो कि लेबर लॉज जो है रिफॉर्म हो. ये अलग बात है कि लेबर रिफॉर्म, लेबर लॉज के अपने एडवांटेजेस हैं. लेबर लॉ अगर रिफॉर्म होगा तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी. आई एम लिबरल इकोनॉमिस्ट. आई बिलीव दैट सोशलिज्म या वेलफेयर शुड ऑलवेज बी वन ऑफ द प्राइमरी प्रिंसिपल. बट इकोनॉमी को आपको रियलिस्टिक होकर चलाना पड़ेगा. वी कैनॉट हैव अ पॉलिसीज ऑफ 1960s एंड 70s वर्किंग इन 2022. ये 2020 में वर्क नहीं करेंगी, आपको चेंज करना पड़ेगा इनको. ठीक है. एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन. So India is a global village now. We are following the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, global efforts, trade, business. ठीक है. इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं. पहले तो बाहर से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल आएगा. फ्री फ्लो ऑफ गुड्स आएगा, कैपिटल यानी पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, लेबर बाहर से आएगा. तो इनमें कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू आर अलाउइंग बिजनेस टू प्रॉस्पर, और आप पूरे इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को एक बड़ा मार्केट बना रहे हो. There is no barrier. You are dismantling the barriers and allowing free flow of goods, capital, technology and labor. ठीक है. कैसे करोगे? अपनी इकोनॉमी को ओपन करोगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए. एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज विल बिकम व्हीकल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो एमएनसीज हमारे ग्लोबलाइजेशन के व्हीकल्स हैं. इंपोर्ट लिबरलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट इजी बना रहे हो. यू आर अलाउइंग इंडियन प्लेयर्स टू कॉम्पीट, फ्लरिश, एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने वो वर द बेसिस फॉर दिस. ठीक है. So globalization के has an impact on everywhere. Globalization, you know, in fact ऐसा कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक और ग्लोबल टेररिज्म देखने को मिल रहा है. एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी ग्लोबलाइजेशन का वन ऑफ द आउटकम है. बिकॉज हमारा जो पूरा फोकस है वो वेल्थ जनरेशन पे है, एट इवन एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग. बट इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट ब्रॉडली. आउटसोर्सिंग, ग्रोथ, पावर्टी कम होना. कहीं कहीं लगता है कि पावर्टी कम भी हो रही है, बट कहीं ना कहीं किसी को नुकसान भी कहीं कहीं हो रहा है.
So how do you bring globalization? By investment, इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस, डिफेंस, हर जगह हमको इंटरनेशनल लॉज भी फॉलो करने होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड के, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के. सो वन इज द स्टेप इज इकोनॉमिकली यू अलाउ एंट्री ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, मूवमेंट कैपिटल. ठीक है. पॉजिटिव्स क्या है? ह्यूज जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड. आप अगर देखते हो 1990s में, 21st सेंचुरी में, आप तो हम सब लोग तो, आई एम गाइडिंग फॉर यू नो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, आप लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए एफर्ट कर रहे हो, बट रियल जॉब्स कहां से आती है? मार्केट से आती है. सो इट हैज ब्रॉट जॉब क्रिएशन इन द मार्केट, टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड. गवर्नमेंट को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है? टैक्सेस के फॉर्म में. एंड नाउ द एमएनसीज एंड ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव बिकम अ न्यू प्लेसेस वेयर बिजनेस आर हैपनिंग. नेगेटिव्स भी है इसके. पहला तो ये एमएनसीज क्या करती है? गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है. they take the profit back to their own country. अब कोई जापानीज फर्म है तो they want to take profit to their own company. छोटे बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. The big companies treat smaller companies like a doormat. Okay, they are out of the business. Either या तो उनको खरीद लेते हैं. They focus damage to environment, pollution काफी जनरेट हो रहा है. तो ये सारा जो कंस्ट्रेंट्स हमें देखने को मिल रहा है, and this is a challenge to globalization as well. ड्रेन ऑफ वेल्थ. इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है 100 करोड़, तो बिलीव मी अगले 2-3 साल में वो हर साल 10 करोड़ हर साल प्रॉफिट अपना लेके जाएगी. सो दैट इज द सो देयर इज अ वन टाइम एंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट लॉन्ग टर्म पैसा हमेशा जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा. तो दैट इज व्हाई ग्लोबलाइजेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड आल्सो. ये अलग बात है कि द पीपल हु कम टू इन्वेस्ट इंडिया दे आल्सो क्रिएट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. दूसरा, द एमएनसीज कैन मेक इंडिया एज अ बेस. मान लीजिए कोई एमएनसी आती है और इंडिया को बेस बना लेती है, बिकॉज टुडे द मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इज डन इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैनर. एमएनसी मान लो यूएस बेस्ड एमएनसी है, वो इंडिया में, इनकी फैक्ट्री सिर्फ इंडिया में ही है और वो इंडिया से पूरे वर्ल्ड भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज गुड फॉर इंडिया बिकॉज एक्सपोर्ट इनकम हमको मिलती है. ओके, सो वैलिड पॉइंट अंकित. अंकित का एक सवाल है, मैं भी पूछता हूँ, मैं डिस्कस करूंगा उसको. ओके, सो नाउ वी आर विटनेसिंग ग्रोथ ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, पुलिसिंग में, एजुकेशन में. देखो ना, आज हम लोग क्यों बैठे हुए हैं? बिकॉज आईटी ग्रो कर रहा है. आज हम लोग जूम, एक कंपनी जूम है जिसके ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं. ये यूएस बेस्ड कंपनी है, इसका सर्वर चाइना में है और हम लोग इंडिया में इसको ऑपरेट कर रहे हैं. कैन यू बिलीव दैट? ऐसा नहीं कि इसके ऑप्शन नहीं है. देयर आर सो मेनी ऑप्शन, वी आर जस्ट यूजिंग वन ऑफ द ऑप्शंस. So this is about growth of, so हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट है. आईटी सेक्टर हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड, जॉब जनरेट हो रही है, तो सोसाइटी को बेनिफिट भी मिला है. बट इंडिया में इसको कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा, ये देखने का बात है. बट देयर आर प्रॉब्लम्स आल्सो. फॉर एग्जांपल, लेबर लॉज डाइल्यूट हो रहे हैं. फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, वुमेन आर फोर्स्ड टू वर्क इन द इंडस्ट्री. हमारे जो कमर्शलाइजेशन हो गया है हमारे अपने नॉलेज का, हमारे आयुर्वेदा का नीम कंट्रोवर्सी हुआ था, ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया, नॉलेज इज गेटिंग रिकॉग्निशन. ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? एमएनसीज इंडिया में आ रहे हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. एंड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दैट. पॉवर्टी जो है बढ़ गया है. ग्रोथ, अगर ग्रोथ हो रहा है तो वी आर विटनेसिंग जॉबलेस ग्रोथ. पॉवर्टी अगर बढ़ नहीं रही है तो इनइक्वालिटी तो जरूर बढ़ रही है. पॉवर्टी तो कम हुई है, बट इनइक्वालिटी हैज डेफिनेटली ग्रोन. ट्रिकल डाउन इन द इकोनॉमी शायद उतना नहीं है, एंड आई थिंक हियर गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव टू इंडिया. तो आप हमेशा सुनते हो एक भारत है और एक इंडिया है. सो इंडिया लिव्स इन सिटीज एंड भारत लिव्स इन विलेजेस. सो टुडे वी आर विटनेसिंग millions of people, millions of laborers, millions of migrant workers who are moving to their cities, moving to their villages. तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है. तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी इज अ बिग चैलेंज. रिच और गैप के बीच एक पुअर है. लैंड एक्विजिशन से पुअर को इम्पैक्ट होता है. रूरल पॉवर्टी बढ़ा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है.
वायलेंस एक ऑल्सो देखने को मिलता है। तो ये सारे कंसर्न्स देखने को मिलते हैं एंड दे विल फर्दर इंक्रीज। तो उसका तरीका ये है कि ग्लोबलाइजेशन को हमें फेयर बनाना है एंड वी हैव टू इंश्योर दिस हाउ दिस ग्लोबलाइजेशन हेल्प द मासेस। हम क्या करें कि ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट विलेज में पहुंचे, हम क्या करें ग्लोबलाइजेशन का बैलेंस टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में पहुंचे, हम क्या करें कि टीयर 3 सिटीज में अगर ना पहुंचे तो वहां के लोगों को जॉब मिले, हम क्या करें कि डेवलपमेंट वाइड स्प्रेड हो, सिर्फ कुछ सेंटर्स, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, हैदराबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया, सिर्फ या सिर्फ यही क्यों डेवलप हो, व्हाई नॉट अदर सिटीज। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट। कल्चर की बात करते हैं तो कल्चरल एस्पेक्ट, ये ग्लोबलाइजेशन में ना कल्चरल एस्पेक्ट हैज चेंज आल्सो। मैं ये इकोनॉमिक में ये डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, तो उसमें हम देखेंगे। बट इसको आप देख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन हमारे कल्चर को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, न्यू कल्चर, न्यू ब्रांड, ग्लोबल सोसाइटी, एक ग्लोबल गवर्नेंस का आइडिया है। आप टिकटॉक फॉलो कर रहे हो, वर्ल्ड में किसी में कुछ भी हो रहा है आप इंडिया में जो है कर रहे हो, आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हो, वेस्टर्न फूड हैबिट फॉलो कर रहे हो। सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो सिर्फ इकोनॉमी में इम्पैक्ट नहीं है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन में इम्पैक्ट हुआ है, लैंग्वेजेस, न्यू इंग्लिश हैज बिकम अ न्यू लैंग्वेज, लॉस टू एनवायरमेंट हो रहा है, पोल्यूशन इज आल्सो हैपनिंग। ठीक है, सो देयर हैव बीन फेवर एंड देयर हैव बीन अगेंस्ट। तो बेनिफिट और दोनों है, बेनिफिट तो भी है, टेक्नोलॉजी, मार्केट, ये सारे बेनिफिट है। देयर आर लॉसेस आल्सो। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, रिच एंड पुअर के बीच डिवाइड बहुत बढ़ गया है। ओके, एंड इट इज बिलीव दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प डेवलप कंट्रीज मोर, और ये सही भी है। 1950s के बाद ग्लोबलाइजेशन का जो न्यू ग्लोबलाइजेशन जो हम देख रहे हैं वो देखने को मिला, और इसमें फॉरेन एमएनसीज कहाँ की थी, यूएसए की थी, वेस्ट यूरोपियन नेशंस की, तो उन्हीं को फायदा मिला। आज क्या हो रहा है, द ग्लोबलाइजेशन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स एशिया। ठीक है, और आज अमेरिका की जॉब बैंगलोर में आ रही है, आज अमेरिका की जॉब बैंगलोर चाइना में जा रही है, तो अमेरिका को दिक्कत हो रही है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग प्रोटेक्शनिस्ट सिस्टम। जब तक आपको फायदा मिल रहा था, और आज भी ऐसा नहीं ग्लोबलाइजेशन पुश नहीं कर रहे हैं, दे आर पुशिंग ग्लोबलाइजेशन इन द एरिया वेयर दे हैव बेनिफिट। तो अब इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन का जो ओल्ड ऑर्डर है दैट इज चेंजिंग, अ न्यू ऑर्डर ऑफ ग्लोबलाइजेशन विल हैपन। बट ग्लोबलाइजेशन वापस होना इम्पॉसिबल है, ये एक टेम्पररी सेटबैक है। जैसे अभी आप देखो ट्रेड वॉर चल रहा था यूएसए के और चाइना के बीच, दैट वाज मेनली सिग्निफाइंग ग्लोबलाइजेशन का जो ग्लोबलाइजेशन में चाइना अब स्ट्रांग हो रहा है, एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है, चाइना माइट बिकम लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड में बी आफ्टर अ डेकेड और सो। ठीक है, so globalization के negative phases, India के there are two phases. So we have sprawling malls, we have islands of prosperity. Okay, but the masses are poor. We have oceans of poverty. We have challenges, and that is true. क्या करें, अब गाड़ी उल्टा तो नहीं चला सकते हैं। The only way is that you have to find a midway approach. We have to find कैसे ये masses तक जॉब पहुंचे, how the dignity is given to people. हम आप बैठे हुए यहाँ पे, इट्स मेयर लक। हम एक गरीब फैमिली में पैदा होते तो शायद हम भी रोड पे घूम रहे होते। सो वी आर सिटिंग हियर इन दिस क्लास, वी आर जस्ट लकी टू हैव टू बी हियर। ओके, सो पुअर रूरल एरियाज में जो है नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज ग्रोन। ठीक है, डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, वेल्थ इज इन फ्यू हैंड्स, लैक ऑफ रिफॉर्म्स बहुत सारे। तो लैक ऑफ रिफॉर्म में क्या, कंपटीशन अनइक्वल हो गया है, मेनी एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज नॉट हैपेंड। सो वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज है, नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, slums have proliferated, you know unemployment is a big concern, global terrorism has gone, a new global culture is coming, loss of identity। आप एक भीड़ के हिस्सा हो, you are a mere one person in the huge crowd, you have you are a faceless person। okay, so ये कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। सो रिफॉर्म्स में ये भी कहा गया कि लिटिल वाज अचीव्ड विद रिफॉर्म टू पब्लिक सेक्टर। रिफॉर्म्स हुए बट कुछ एरियाज में अच्छे हुए, इन एरियाज लाइक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यहाँ रिफॉर्म बहुत इफेक्टिव नहीं हुए। लेबर रिफॉर्म आर स्टिल पेंडिंग। लेबर रिफॉर्म एक अपने आप में अलग टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूंगा। एंड
प्रॉब्ली न्यूज में चल रहा है, तो आई एम थिंकिंग ऑफ प्रॉब्ली टेकिंग दिस टॉपिक इन द करंट अफेयर्स आल्सो। तो लेबर रिफॉर्म, आज मैं बात नहीं करूंगा लेबर रिफॉर्म के बारे में, अभी कमिंग लेक्चर में बात करूंगा, बट लेबर रिफॉर्म इज अ वे फॉरवर्ड। मैं भी एक छोटा सा वीडियो में बनाने का प्लान कर रहा हूँ ऑन लेबर रिफॉर्म्स। मैंने एक छोटा स्टूडियो बनाया है अपने रूम में, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ एक छोटा सा वीडियो बना के आप शेयर करूंगा। सो आई विल डिस्कस अबाउट द कॉन्टूर्स ऑन लेबर रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं उसके अपने पॉजिटिव्स थे, बट नाउ वी हैव टू री एम्फसाइज कि रिफॉर्म्स रेगुलर होते रहे, सो दैट वी आर एबल टू कैपिटलाइज थिंग्स। तो ग्रोथ रेट जो है इंडिया की अब थोड़ा कम हो रही है पहले से, एंड वी हैव टू फोकस ऑन मोमेंटम। कुछ बीच में क्राइसिस भी आए थे ग्लोबलाइजेशन में, जैसे ईस्ट एशियन क्राइसिस आया था, जापान में रिसेशन, साउथ कोरिया, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो ये भी, इससे भी हमें इकोनॉमिक एक तरह से प्रॉब्लम्स हुई थी, सैंक्शंस लगे थे हमारे ऊपर टेस्ट जब हुए थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में चूंकि हम इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो अभी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज इंटीग्रेट है, इट्स लाइक दैट। अब जैसे मान लीजिए ये यूएसए, ये चाइना है, ये इंडिया है। अब अगर यूएस और चाइना, अब मान लीजिए ट्रेन की बोगी की तरह हम मूव कर रहे हैं, और अगर यूएस पे इंपैक्ट होगा, चाइना में इंपैक्ट होगा, तो हमको भी इंपैक्ट होगा, राइट? सो वी आर कपल्ड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, एनीथिंग हैपन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच गेट इंपैक्टेड टू इंडिया ऑल्सो। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है, नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। ओवरऑल एक क्रिटिसिज्म आता है, मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं दैट दे क्रिटिसाइज नेहरू, दे क्रिटिसाइज इंदिरा गांधी, दैट्स ओके, यू कैन क्रिटिसाइज, इन देयर इज अ फ्री विल, आप करिए। बट कोई भी डिसीजन जब किसी टाइम लिया जाता है, तो उस टाइम के सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं? द बिगिनिंग जो नेहरूवियन स्ट्रेटजी था, इट वाज नॉट ओनली नेहरू, देयर वाज ऑलमोस्ट 100% यूनानिमिटी, ऑलमोस्ट 99% कह लीजिए, लोग कह रहे थे कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल सोशलिस्ट ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए। बट दो सेम पीपल उन्होंने कहा कि जब लेटर ऑन जो शिफ्ट होनी चाहिए स्ट्रेटजी में 1960s में, वो हमने नहीं देखा, एंड दैट इज व्हाई नेगेटिव फीचर्स इमर्ज इन द इकोनॉमी। इंडिया इकोनॉमी टुडे, वो जो नेहरूवियन स्ट्रेटजी था, उससे हमारा डिपेंडेंसी कम हुआ, वी वर एबल टू इंक्रीज आवर बार्गेनिंग पावर, इंडिपेंडेंस। व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर कंट्रीज, शायद उन्होंने अच्छा किया होगा, बट स्टिल आई थिंक देयर वर पॉजिटिव्स एंड देयर वर नेगेटिव्स। So now India, you cannot look back, you can learn from the mistakes of the previous period, and the reform is something that को कंटिन्यू करना है। अगर आप देखोगे तो आप देखो इस पीरियड में ग्रोथ कितना था, 5.6% था। इस पीरियड में देखो ग्रोथ कितना है, 6.4% है, विच मींस 80s का फेज है, यहाँ पे रिफॉर्म से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इससे पहले 1950 से लेकर 1980 में आपको मालूम है ग्रोथ रेट कितना था? 3.5%। सो 3.5 से 5.6 हुआ, 6.4 हुआ, इस पीरियड में 7.8, 8.2, फिर दो तीन साल एक स्लम पीरियड ऑफ थोड़ा लल पीरियड था, फिर 15-16 से लेके 17 इनफैक्ट 18 तक हमारा जो ग्रोथ था वो 7% एवरेज फॉल चला गया, फिर 19-20 में वो नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो आप देखो ना, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हैज, वी हैव डन वेरी वेल ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। एवरेज ग्रोथ हमारा 6%, 6.5% से ऊपर है, दैट इज हाउ इट इज। So post 1991, India witnessed rapid growth of GDP for multiple decades. Growth of GDP increased from 5.6% to 8.2%, and agriculture लेकिन कम हो गया है, and industrialization growth हमारा काफी फ्लक्चुएशन रहा है। इंडिया का जो रिफॉर्म पीरियड है वो सर्विस सेक्टर ड्रिवन रहा है, और इसीलिए हमारा एक जो एरिया है इंडस्ट्री, दैट स्टिल नीड्स अटेंशन, जिस पर अभी फोकस अभी करना है, एंड एग्रीकल्चर को हमें रिफॉर्म करना है, and agriculture have to be more productive in terms of outcome. So जो है यहाँ पर हमें फोकस करना है, and सर्विस सेक्टर ग्रोथ इज देयर, इंडस्ट्री ग्रोथ लिमिटेड रही है। हमारा फॉरेक्स आज अच्छा खासा है, ठीक है, वी हैव मोर देन एफडीआईज इंडिया में हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। सो ओवरऑल रिफॉर्म्स के पॉजिटिव्स हैं, बट द नेगेटिव साइड ये है कि इनइक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल के नुकसान हो गए, लेबर को डिग्निटी कैसे मिले, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ कंसर्न। सो दैट इज हाउ द कंसर्न्स हैव बीन, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स टुडेज लेक्चर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।